पावर 0 लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तब क्या होगा आपको, देन दिस रेट इज इक्वल टू के बनेगा। इट मींस rate does not depend on the concentration of the reactants. yes, यही बात बोला था उन्होंने। क्वेश्चन के अंदर कैसे बनाया था क्वेश्चन पता है आपको? हाँ, इधर सुन लो। अभी क्वेश्चन ऐसे बना था बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिएक्शन, in which of the following order reaction concentration of the reactant does not depend on the rate, does not depend on the rate, where it is not dependent, it is in zero order reaction, rate is not dependent on concentration of the reactants. Okay dear students, clear? Clear हो गया? Yes, yes. And this zero order reaction के characteristics क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट ओबे करना चाहिए, दैट इज मोलार concentration of the reactants is equal to molar concentration, initial concentration into K into T. It should follow this equation. हाँ, यस, मीन्स कैसे इसको आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहे, ये इक्वेशन को मैंने आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताना चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग टाइम हियर, initial concentration of the reactants, it is this one, and final concentration of this one A naught ऐसे लिया मैंने। This equation indicates that as the time passes, concentration of the reactants gradually decreases. That's why we are getting minus K. समझे आपको? Yes, this is the graph for zero order reaction. क्यों बेटा? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल एंड फाइनल, सॉरी, माइनस के बता रहा है इन्होंने, मींस नेगेटिव स्लोप आ रहा है यहाँ पे। यस, यस। नेक्स्ट वन कंटिन्यू कर सकते ना? समझ रहा, या कोई स्लो करना आगे ऐसा कुछ है तो बता दो बेटा। आई एम वेटिंग रिप्लाई, ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दू। हाँ, ओके, हाँ, राइट। यस डियर स्टूडेंट्स, वो सवेरे ना क्या हुआ, इमरजेंसी में हमारे घर में एक छोटा सा लड़का गिर गया। यस, थोड़ा सा उसको ये हुआ था, हॉस्पिटल को भागना पड़ा। एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट होता बोल तो कब हो गया यार, दैट्स वाई ये पोस्टपोन करना पड़ा हमारे क्लास को। ओके, लीव इट बेटा। एंड वन मोर ग्राफ इज देयर फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू क्या है? के है। मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोलर concentration of the reactant. Yes, when we are plotting the graph, if we are taking concentration on x-axis and rate on y-axis, we will get a straight line which is parallel to the concentration, because rate does not depend on the concentration in zero order reactions. In zero order reactions, concentration of the reactants is not considered. That's why we will get a straight line, or rate का line straight आएगा, which is parallel to x-axis. Got it my point? यस, क्या बेटा दो ग्राफ समझे आप लोगों को?
दो ग्राफ समझ में आया क्या? हाँ बेटा, मैं जितना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उतना रखो, उससे हटके आ गया तो मेरे को पूछ लेना आप लोग। नहीं नहीं, मैं पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा वो शॉर्टकट लगता। यस यस। नेक्स्ट वन, हाउ टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया आपको, बोलो जीरो ऑर्डर के रिलेटेड में। यस, और एक बार रिवाइज करता। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in zero order reaction, rate is independent on molar concentration of the reactants, means it does not dependent. Yes, and this zero order reaction must obey final concentration is equal to initial concentration minus K into T. It should follow this equation. When it is follow the equation, when we are plotting the graph, time and molar concentration of A and molar concentration, initial concentration here, as the time passes, so this concentration of the reactants gradually decreases. That's why we will get minus K. Minus K is slope. Minus K is slope. यहाँ पे कैसे, rate is independent on molar concentration of the reactants. When we are plotting the graph, जब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, if we are taking concentration here and rate here on y-axis, then we will get a straight line which is parallel to x-axis. Because क्यों? Because a rate of the zero order reaction does not depend on the concentration. Okay beta, right. Next continuation, what is half-life? What is half-life? Half-life, it is denoted with a T half. Half-life, it is denoted with a T half. बहुत सारे स्टूडेंट को एक मिसकंसेप्शन है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, इसका लाइफ पीरियड 100 ईयर्स है, फॉर एग्जाम्पल 50 ईयर्स हो गए तो इसका लाइफ पीरियड टी हाफ बोलते, दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे ये 50% हो रहा, यहाँ पे time taken for the decomposition, 50% decomposition of the chemical substance. ये 50% डिकम्पोज होने के लिए जितना टाइम लगेगा, that time is called as a half life. Time required to reduce the initial concentration. Time required to reduce the initial concentration of the reactant to half of its initial values. समझ में आया अभी हाफ लाइफ क्या है? हाँ, so here the half life generally, for example, initial concentration इतना है, इसका half, so this is the half life, ऐसे निकाला जाता है जनरली। ओके, T होगा इसका, तो ये क्या होगा, T हाफ बनेगा, है ना? यस, ये वैल्यूज को लेके हम लोगों ने फाइंड आउट करेंगे। तो T हाफ in zero order reaction, half life, it can be calculated as T half is equal to T A naught by 2K. A naught by 2. ये सब टाइम पास करे जैसी बात हो जाती बेटा, डायरेक्ट मैं बात पे आ जाता। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, half life, it can be calculated as T half is equal to molar concentration of our initial concentration by 2K.
This is the formula to calculate the half life in zero order reactions. यहां पे एक स्टेटमेंट भी बन जा रहा, आप ऑब्जर्व करिए. व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या बन रहा है? इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस half life is directly proportional to initial concentration of the reactants. yes, ये स्टेटमेंट को याद रखिए. In zero order reaction, half-life period is directly proportional to initial concentration. Initial concentration. ओके बेटा, क्लियर है? तो ये दोनों के बीच में ग्राफ निकालने की हम कोशिश करेंगे बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इफ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन this initial concentration and T half, कैसे आएगा ग्राफ? प्लीज टेल मी. Both are directly proportional to each other or inversely proportional to each other? Directly proportional to each other. That's why we will get a straight line with a positive slope, because these two are directly proportional to each other. इन दोनों के बीच में तो हम ग्राफ निकाल रहे. ओके बेटा, यस. नेक्स्ट वन, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया ना? हम आपको कल भी बोले थे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दो परफेक्ट करिए, उससे हटके क्वेश्चन आएगा तो हमसे पूछ लीजिए. हाँ, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट? हाँ बोलना, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, n के प्लेस में जीरो लगा दीजिए. यस, जीरो एंड जीरो. Then final what will be the units? Yes, moles per liter per second. Moles per liter per second. These are the units of rate constant as well as rate. As well as rate. जीरो ऑर्डर के लिए ये दो के यूनिट्स सेम ही रहेंगे, सबके लिए नहीं, फॉर जीरो ऑर्डर. ये कल बताया था मैंने ये बात. यस, yesterday we discussed this one. यस, आपको और इजी करते जाता. डोंट वरी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करिए. यस, क्या क्या पॉइंट्स बोला बेटा मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? होने दो, ये पूरा सा कंप्लीट करके ही हम बात करेंगे. यस, जनरली zero order reactions are takes place in a heterogeneous system. Photochemical reactions, examples बोल रहा मैं. Photochemical reactions are कौन से होते? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते बोल के कोई पूछे आपसे? Reactions which are takes place in the presence of sunlight, that reactions are photochemical reactions. Photochemical reactions are zero order reactions. Yes. Next, second one, decomposition of N2O on platinum surface is also a zero order reaction. Next, third one, decomposition of ammonia in presence of molybdenum or tungsten is also a zero order reaction. No need to remember all this. आपको दो ही याद रखना है. चलो, हम इतना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते. सुनिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते बल्कि आपसे कोई पूछे तो दो ही याद रखिए. एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. एंजाइम catalyzed reactions are zero order reactions and photochemical reactions are zero order reactions. That's it. That's it. क्या बेटा, हो गया? क्लियर है? यस बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूरा हो गया जीरो ऑर्डर का. चलो मेरे साथ आप लोग भी बोलते जाइए, फॉलो करते जाइए डियर स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस दिस वन, तभी तो हमको समझ में आएगी क्या हो रहा है. हाँ, यस. चलो, नहीं हो जाता, क्लियर हो जाता. आज डॉक्टर्स डे है,
एडवांस हैप्पी डॉक्टर्स डे बनने वाले डॉक्टर्स के लिए। कौन सा भी बनिए, डॉक्टर तो बनना है हमको। हाँ, यस। थैंक यू तो बोलो रे। अपने आप तो थोड़ा सा ये रखो, अपने आप पे तो थोड़ा बिलीव कर लो। सर हम बनतेच नहीं सर डॉक्टर। हाँ, क्या लोग है रे तुम। थैंक यू टाइप करने भी तुमको क्या जैसो हाथ नहीं आ रहे। चलो ठीक है। नेक्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक बार रिवीजन करते चलेंगे। हाँ बोलिए। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, concentration of reactants, concentration of reactant does not depend on rate। रेट को इसको रिलेशन ही नहीं है। ओके, राइट। सेकंड वन, what is the expression for zero order reaction? Rate is equal to k into molar concentration of A to the power 0 because it is a zero order reaction। हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हम उसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाल, वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन छोड़िए। It must should follow this reaction, this equation. A is equal to molar concentration, initial concentration minus K into T. When we are plotting the graph, we will get a negative slope. Negative slope. Then what is the formula to calculate the half-life? Half-life calculate करने के लिए formula क्या है in zero order reaction? Half-life is equal to molar concentration, initial concentration by 2 into K. K कौन है? What is K? K is a rate constant. हाफ लाइफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 3 टर्मिनोलॉजी पता है आप लोगों को। यस यस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, all photochemical reactions are zero order reactions। next point, enzyme reactions which are takes place in the presence of enzyme catalyzed reactions are zero order reactions। enzyme catalyzed reactions are zero order reactions। yes, बस ये स्टेटमेंट्स इनफ है। यस, क्या बेटा क्लियर है सबको? यस। और यूनिट्स एक बोलना था। यूनिट्स कौन से यूनिट्स है? यूनिट्स मोल्स पर लीटर पर टाइम और सेकेंड। यस, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट that is the first order reaction। next we are going to discuss about first order reaction। इधर सुनिए। यस, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। इफ A gives rise to products, अरे जब टाइम आपके पास 0 सेकेंड होगा तो A का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू A। फॉर एग्जाम्पल जब टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड बन गया तो इसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन चले जाएगा ना। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A माइनस एक्स। कुछ तो घटेगा ना बेटा, कुछ तो घटेगा ना। हाँ, if initial concentration of A is equal to considered as A, after some time if the concentration of A is equal to A minus X, इसका concentration A minus X होगा, then rate of reaction कैसे लिखते बोलो इसका? rate of reaction
decrease in the molar concentration dx by dt is equal to k into a minus x. ये रेट है ना, रेट है ना बेटा, कैसा है रेट का फार्मूला, बोलता बोलता डोंट वरी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं आप। चलो रेट का और एक क्या है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टाइम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के प्लेस पे क्या लिख रहे के, कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ, इनिशियल ए था तो फाइनली ए माइनस एक्स बना। अभी क्लियर हुआ ना? यस यस। यहां पे थोड़ा सा हम एक्सचेंजेस करने के बाद डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी, के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को, डोंट वरी, मैं छोड़ देता आपको। इतना नहीं करना चाह रहे, ये सब हमको नहीं मालूम है सर बोल रहे, तो सिंपली आई एम इरेजिंग दिस वन, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो बता देता सुन लो। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in first order reaction, when we are going to calculate the rate constant k को calculate करना है हमको, rate constant is equal to k is equal to 2.303 by t into log a by a minus x. This is the formula to calculate the rate constant in first order reaction. In zero order reaction बोलो क्या होता, k is equal to rate रहता, और क्या है ना? यहाँ पे नहीं पूछा जाता, फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछ रहे। अभी तक जितने भी नीट एग्जाम है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर दो ही पे चल रहा, सिलेबस में भी ये दो ही है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिस रेट कांस्टेंट इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, in first order reaction this k or rate constant it can be calculated as 2.303 by t into log of a by a minus x. This is the formula. सर a कौन है बोल के बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a minus x कौन है बोल तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। A is the initial concentration, A naught, वैसे भी लिख सकते हैं, हाँ यस। ओके, अब ये K को बेस करके आप यहाँ पे इसको हम ग्राफ निकालना चाह रहे हैं। इफ वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग T लाइक दिस, कहाँ है T, ये वाला T। नाउ हियर वी आर टेकिंग log a माइनस एक्स, यहाँ पे लेंगे नीचे, एंड हियर log a, यहाँ पे log a को ले रहा मैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है ना, अभी कैसे आना चाहिए ग्राफ आप बताओ। ये तो कांस्टेंट है ना भैया, ये स्लोप में चले जाएगा, ये वाला यस वेरी गुड, दो स्टूडेंट्स का आंसर मिला। वी विल गेट, यस वेरी गुड, वी विल गेट ए नेगेटिव स्लोप लाइक दिस। यस चलो ये भी नहीं हो रहा आपसे, तो माई कंक्लूजन पे और एक बात बोलता आपको, सुन लो, डोंट वरी सर, स्किप नहीं कर रहे बेटा। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate constant it can be calculated as a 2.303 by t into log of a by a minus x is the formula. Yes, next, what is the formula to calculate the half-life in first order reaction? Half-life in first order reaction, T half is equal to 0.693 by k. याद रखियो, ये साल ये क्वेश्चन पे, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन चांसेस है,
एक 10-12 फॉर्मूले मीन्स कॉन्सेप्ट है, उस पे ही बेस करके क्वेश्चन है इसका। Yes, this is the formula to calculate the half-life in first order reaction. Half-life in first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, यस, ओके, क्लियर है। हाँ, यस, 2 फॉर्मूलेस याद रखेंगे ना। यस, अरे to calculate half-lives, in first order reaction, there is a formula. Initial concentration by 2 power n is the formula. 2 power n is the formula. Explanation पूरा complete देता. First question is amount left after. How much amount is left? Yeah, this is the formula to calculate how much amount is left after n half. n means n half, कितना भी हो सकता. Yes, मैंने यहां पे ले रहा amount left in one half, बोल रहा मैंने, clear. How much amount left after 1/2 बोला उन्होंने. 1/2 is nothing but by 2, उतना ही होगा ना. हाँ, by 2. Yes, yes. Next, amount left after 2 halves. Amount left after 2 halves. कितना होगा 2 halves? तो वो a0 by 2 square बनेगा. ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया मैं. Then it is equal to a0 by 4. अरे how much amount left after 3 halves बोला, for example, how much amount left after 3 halves? Then simply by changing these two, you have to put number 3 here. Then it becomes 8. अभी तो समझे शायद आप क्या बोलना चाह रहे हो. How much amount is left after half-lives? After half-life. That is initial concentration by 2 to the power of n is the formula to calculate the amount which is left after number of half-lives. First half-life, second half-life, third half-life, fourth half-life. ऐसे बोल रहा मैं. हाँ, right. Next one, dear student, what is the units of rate constant? Please बोलिए. क्या था रेट कांस्टेंट के लिए? यूनिट्स के लिए हमको जनरल फार्मूला बताए थे ना हम आपको. दैट इज मोल. यस, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड, ऐसे लिए थे. यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n के प्लेस में 1 1 लगा दो. n के प्लेस पे 1 and 1 लगा दो. 1 minus 1 0, x to the power of 0. ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. फाइनली द यूनिट इज पर सेकेंड. This is the units of rate constant. This is the unit of rate constant. अरे तुमको और बताता थोड़ा सा. ये इवनिंग टाइम होने से ये हो रहा, आपको और कल क्लास में डिस्कशन करता है इसका शॉर्ट नोट्स बना के. डोंट वरी. ओके बेटा. यस, क्या पूछा गया एक बार, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा सुनिए. देयर इज ए टी हाफ लाइफ.
देयर इज ये वन मोर हाफ लाइफ मीन्स कितना परसेंटेज, 50% डिकम्पोज हो गया। यहां पे भी कुछ है, वो कौन है नहीं मालूम हमको, एक्स परसेंटेज बोल रहा हूं मैंने। एक्स इट मे बी 25% और 75% और 80%, वॉट एवर इट मे बी, और 99.9%, वॉट एवर इट मे बी। समझ रहे बात को? सो द रिलेशन बिटवीन टी हाफ लाइफ एंड टी एक्स%, एक्स% आपको एग्जाम में जितना भी देगा उसको अप्लाई करना है। यस, what is the relation? A relation is, yes, a relation is t half by t x% is equal to 0.3 by log of 100 by 100 minus x। अरे इतना इजी क्वेश्चन है ये तो सॉल्व करने के लिए, मेरे को तो यही क्वेश्चन होना, आप ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए बोलता हूँ। देखो ना, हम बताते आपको, ये फार्मूला को रखेंगे ऐसे, वन मोर टाइम, और एक बार फार्मूला लिखता हूं, देख लो। टी हाफ बाई टी x% is equal to 0.3 by log of 100 by 100 minus x is a formula. 100 by 100 minus x is the formula. अभी मैं क्या बोल रहा, टी हाफ एंड टी 99.9% के लिए निकालो। देखो अभी टी हाफ बाई टी 99.9% बोला डियर, ध्यान से सुनना है। 0.3 एज इट इज बाई log ऑफ 100 बाई 100 माइनस एक्स, एक्स कितना है 99.9, 99.9 बोल तो कितना बचेगा 0.1 ना, है 0.1 ही बचेगा ना भाई, नहीं क्या? 100 माइनस 99.9, यहाँ पे लाओ, ये 1 आएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 0.1 हो, ठीक है 0.1। ये डेसिमल को कैंसिल करिए, यहाँ पे जो डेसिमल आया था 0 पॉइंट लिखे ना हम लोगों ने, वो पॉइंट को वहां से कैंसिल करिए, पॉइंट को कैंसिल करे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। log 1000 क्या वैल्यू बनेगा बोलो, हेलो? log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू है ना, यस, इसका वैल्यू बनेगा 3, log 1000 का वैल्यू बनेगा 3। देन टी हाफ बाई टी 99.9% is equal to 0.3 by 3, 3 गेट कैंसल, नीचे कौन आएगा, इज इक्वल टू 1/10 बचेगा। चलो अभी आ गया रिलेशन, ही आ गया ना, देख लो अभी स्क्रीन पे देख लो, इरेज करके आगे बोल देता हूं। हाँ, क्या बनेगा रिलेशन, टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ बनेगा रिलेशन। हाँ डियर स्टूडेंट, इफ यू आर एबल टू डू दिस वन, आपसे हो सकता तो करिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 3/4? 3/4 बोल तो कितना जी, 3/4 बोल तो कितना आता, 75% आता। हाँ, इधर देखिए, टी हाफ बाई टी 75%, 3/4 बोल तो कुछ 75% होगा, इज इक्वल टू, हाँ 0.3 बाई log ऑफ 100 बाई 25 ना, क्योंकि 100 माइनस 75 25 होगा, हाँ 25 वंस और 25 4 टाइम्स, करेक्ट है। log 4 का वैल्यू कितना है, log 4 का वैल्यू 0.3010, समथिंग कुछ तो है ना बेटा, log 4 का वैल्यू
log 2 का वैल्यू 3010 या समथिंग है, उसको सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द रिलेशन। आया जी समझ में? यस। सो हम वही बात बोल रहे थे बेटा, और एक बार हम लोगों ने आपको सुना दे रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या नहीं तो कंपैरिजन करेंगे इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाउ टू